Namaste. This is Advocate Aditya Walakar. Welcome to the Legal Intellectual Society of Mumbai. In this video, we will see how to draft and file an application of return of property in online fraud cases. Friends, जैसे कि हम सभी को पता है कि nowadays we all are experiencing surge in online fraud cases, and due to which courts are also getting flooded with the application of return of properties in this area. And filing of return of property, especially in this type of online fraud cases, do require a different approach because there is no material thing of tangible nature like mobile phone or bike or gold, etc. involved here. And all the rules and judgments which are there in respect of typical return of property are generally not compatible with the return of property in online fraud cases. And till date, there is still ambiguity with respect to such an application due to lack of rules and judgment in this regard. So इसीलिए आज के इस वीडियो में we will try to gauge into topic like what is online fraud, how the process of registration of complaint takes place, and how the authorities seize the accounts, and finally the things which keep in mind while filing return of property in such a cases. So इसे एक एक करके देखते हैं. सबसे पहला है व्हाट इज ऑनलाइन चीटिंग और फ्रॉड. सो बेसिकली सबसे पहला सेक्शन जो लगता है ऑनलाइन फ्रॉड के केसेस में वो है सेक्शन 420 और सेक्शन 318 सबसेक्शन 4 ऑफ BNS, which state that whoever cheats and thereby dishonestly induces the person so deceived to deliver any property. So first comes the cheating, second comes the delivery of property. If these two ingredients are made out, section 420 will get attracted. Now, at the same time, there is another section which got attracted in this type of cases of fraud, that is section 66D of IT Act, which states that cheating by personation by using computer resource. So whoever by means of any communication device or a computer resource cheats by personation shall be punished, etc. So if there is cheating and that too by personation by using any computer resource or communication device, then section 66D will come into picture. So these two sections, that is section 420 of IPC or equivalent section 318 subsection 4 of BNS, and that is section 63D, which defines and which are the basic section got attracted in online fraud cases. ये तो हो गई एक चीज जो ऑनलाइन फ्रॉड डिफाइन करती है. सेकंड थिंग that as an advocate we need to understand is that how this registration of complaint in online fraud cases takes place. So एक ट्रैजेक्टरी है जो हमें देखनी चाहिए. सबसे पहला होता है कि सबसे पहले तो ऑनलाइन फ्रॉड कमिट होता है. उसके बाद जो विक्टिम है वो NCCRP पोर्टल पे जाके अपना कंप्लेंट रजिस्टर करता है. उस कंप्लेंट रजिस्टर होने के बाद ऑटोमेटिकली बैंक सर्वर और नोडल ऑफिसर जिस अकाउंट पे वो पैसे गए वो अकाउंट को फ्रीज करते हैं. उसके बाद वंस द अकाउंट इज फ्रीज, विक्टिम गेट एक्नॉलेजमेंट नंबर ऑन हिज रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर. जो वो एक्नॉलेजमेंट नंबर है उसको वो ले जाके पुलिस स्टेशन को देना पड़ता है, नियरेस्ट पुलिस स्टेशन, जहाँ पे जाके पुलिस जो है वो उसको PDF जनरेट करती है ऑन द बेसिस ऑफ दिस एक्नॉलेजमेंट नंबर. नाउ इस PDF में दो तीन चीजें होती है. एक तो जहाँ जहाँ जिस जिस अकाउंट में पैसा गया है उसका अकाउंट नंबर होता है, IFSC कोड होता है, एंड उसके साथ साथ जो भी अमाउंट है वो मेंशन होता है कितना अमाउंट है. लेटर ऑन वंस द विक्टिम गेट PDF, उसको जाके रिटर्न ऑफ प्रॉपर्टी फाइल करना पड़ता है बिफोर कोर्ट. कोर्ट देन अगेन से कॉल आउट करती है पुलिस का. उसके बाद ऑर्डर करती है. ऑर्डर करने के बाद कोर्ट डायरेक्ट्स द पुलिस स्टेशन to release the amount and to transfer the amount in victim's bank. Once the police get this order, police order the bank to transfer the money and उसके बाद वो जो अमाउंट है वो विक्टिम के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर होता है. सो ये ट्रैजेक्टरी फॉलो होती है इन ऑनलाइन फ्रॉड केसेस, फ्रॉड से लेके अमाउंट रिटर्न होने तक. तीसरी चीज जो हमको समझनी चाहिए वो है अंडरस्टैंडिंग ऑफ लेयर्स. ना ये लेयरिंग का कंसेप्ट क्या है. सी, जब विक्टिम के अकाउंट से सबसे पहला अमाउंट ट्रांसफर होता है दैट इज इन फ्रॉस्टर अकाउंट, तो उसको कहते हैं लेयर 1. नाउ अगर ये फ्रॉस्टर सेकंड फ्रॉस्टर के अकाउंट में ट्रांसफर करता है तो वो फिर वो लेयर 2 हो जाता है,
एंड अकॉर्डिंगली एफ, अगर एफ थ्री के यहाँ पे ट्रांसफर करता है, एफ टू एफ थ्री के अकाउंट में ट्रांसफर होता है, तो लेयर थ्री बन जाती है और सो ऑन। तो जहाँ जितना जितना वो पैसा मल्टीप्लाई होगा अकाउंट्स के इसमें, उतना उतना वो लेयरिंग का कंसेप्ट बढ़ती जाएगी। वो लेयरिंग का कंसेप्ट आपको समझने के लिए यहाँ पे एक्नॉलेजमेंट रिपोर्ट है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ये पीडीएफ जनरेट होता है, इसमें आप देख सकते हैं लेयर वन, लेयर टू, लेयर थ्री। सो जैसे जैसे अमाउंट ट्रांसफर हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है अकाउंट के अकाउंट नंबर पे, वैसे वैसे वो लेयरिंग बढ़ती जा रही है। सो ये लेयरिंग अप टू 10 लेयरिंग अमाउंट जो रिकवरेबल होता है। कुछ कुछ केसेस में वो मोर देन 10 लेयर भी हो तो भी अकाउंट अमाउंट रिकवर हो जाता है। सो सबसे पहला ये कंसेप्ट आपको समझना चाहिए लेयरिंग का। सेकंड कंसेप्ट जो है वो है पुट ऑन होल्ड वर्सेस लियन मार्क। ये की डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। सो if the amount which is put on hold means that the XYZ amount is there in Froster bank account and that amount is put on hold. आप यहाँ पे देख सकते हैं put on hold का मार्केट। While if the remark is lien mark, it means that the amount, suppose XYZ amount was transferred in that bank account by Froster, but now Froster's account has zero balance and that is why it is marked as a lien. अब यहाँ पे डिफरेंस दे सकते हैं कि यहाँ पे ट्रांजेक्शन अमाउंट 10,000 का था, डिस्प्यूटेड अमाउंट अभी भी है तो वो होल्ड पे चला गया। लेकिन यहाँ पे डिस्प्यूटेड अमाउंट, ट्रांजेक्शन अमाउंट दिख रहा है आपको लेकिन डिस्प्यूटेड अमाउंट नहीं है, मतलब अभी वहां पे जो अमाउंट है उस फ्रॉस्टर के बैलेंस अकाउंट में वो जीरो है। सो इट इज पुट एज अ लियन मार्क। सो द एप्लीकेशन फॉर रिटर्न ऑफ प्रॉपर्टी विच जो आपको फाइल करनी है, दैट इज ऑलवेज बी इन रिस्पेक्ट ऑफ द अकाउंट विच आर मार्क एज अ पुट ऑन होल्ड एंड कैन नॉट बी फाइल विथ रिस्पेक्ट ऑफ द लियन मार्क। सो एज एन एडवोकेट व्हेन यू गेट द पीडीएफ in your hand, you have to ask for return of property only in respect of the account which are put on hold and not the lien mark। तो ये कंसेप्ट आपको समझनी चाहिए। तीसरी चीज आपको ध्यान में रखना है कि वाइल ड्राफ्टिंग योर एप्लीकेशन, आपको आपके एप्लीकेशन में ऐसा चार्ट बना के देना है कोर्ट को, जहाँ पे मेंशन होगा अकाउंट नंबर, जिस जिस अकाउंट नंबर पे वो पैसे गए, उसका आईएफएससी कोड, उसका यूटीआर नंबर और ट्रांजेक्शन नंबर जो भी होगा वो। उसके बाद बैंक का नेम और जो भी अमाउंट होल्ड पे रखा है वो होल्ड का मेंशन करना है, जितना भी अमाउंट है वो। सो ये चीज आपके ड्राफ्टिंग में होनी चाहिए। तीसरा चीज जो लास्ट में है वो है प्रेयर। सो योर प्रेयर शुड लुक लाइक दिस। सो सी द सेकंड नंबर प्रेयर। द ऑनरेबल कोर्ट may please to order direct Kapurwadi police station to issue intimation in relation to the acknowledgement number to all concerned banks as mentioned in paragraph 13 of this application to unfreeze the account and to return the monetary amount totaling जो भी है वो from all the bank account mentioned in paragraph 13, जो भी हमने यहाँ पे मेंशन किया है। ये जो मेंशन किए इस सभी अकाउंट से ये जो विक्टिम के अकाउंट में वो ट्रांसफर कर दिए, इसे आपको प्रेयर करना है। अलॉन्ग विथ आपको डिटेल में अकाउंट नंबर लिखना है और आईएफएससी कोड भी देना है, बैंक बैंक का नाम भी डालना है। तो योर प्रेयर शुड लुक लाइक दिस। एक और एक इंपॉर्टेंट चीज देखने वाली है कि नाउ एज फार एज एनी जजमेंट इज कंसर्न, अनफॉर्चुनेटली there are no any landmark judgment in this regard which shares any light on the return of property with respect to online fraud except the judgment of this Rahul Chari versus State of Karnataka, जहाँ पे डायरेक्शन दिया कि इट इज डायरेक्टेड दैट द अकाउंट होल्डर फ्रॉम हुज अकाउंट द अमाउंट इज टू बी ट्रांसफर हैज टू बी गिवन इंटीमेशन प्रायर टू सच अ ट्रांसफर इफ ही इज नॉट एन अक्यूज पर्सन। जनरली जो लेयर टू के बाद जो अकाउंट आते हैं या लेयर थ्री के बाद अकाउंट आते हैं, जनरली फ्रॉस्टर के होंगे नहीं होंगे मालूम नहीं, अगर नहीं होंगे तो उनको इंटीमेशन देना चाहिए। ऐसा कर्नाटका हाईकोर्ट का एक जजमेंट है। सो दीज आर द ओनली गाइडलाइंस इन दिस रिगार्ड, बट अगेन एज यू सी, as a victim and as an advocate, we do not have the details of the account holder. The only thing which we have is account details, and it is very difficult to implement the direction of this judgment, that is to give intimation to the account holder from whose account the amount is to be transferred. Because if there are more than 3 or 4 layers or up to 10 layers in any financial fraud, as an advocate and as a victim, we do not possess that details. So हमारे लिए वो इम्पॉसिबल होता है उसको इंटीमेशन देना। सो अगेन
though there is a direction, we have to left it on the court and to the police authorities to get the details of that fraudster and to give intimation if required. So इम्पोर्टेंट थिंग जो है आपको समझनी चाहिए, एक तो है लेयरिंग का कंसेप्ट, सेकंड थिंग इज दैट पुट ऑन होल्ड वर्सेस ली एंड मार्क का डिफरेंस। पुट ऑन होल्ड के रिस्पेक्ट में ही आपको रिटर्न ऑफ प्रॉपर्टी डालना है मेंशन करके, और importantly this type of chart you have to mention in your application, and the prayer which is very important to transfer the amount from all the accounts which you have mentioned here to the victim's account जहाँ पे डिटेल देनी है आपको अकाउंट नंबर along with the IFSC कोड। सो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी। थैंक यू।